So we're starting with income from house property. Okay, this is our first lecture. Assessment year 2022-23, June 22 attempt, CMA intermediate. ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हमारा है फर्स्ट लेक्चर. चलिए तो जहाँ क्योंकि हम अभी हेड्स ऑफ इनकम में हम एंटर किए हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल बता देता हूँ. तो जो भी इनकम होता है हमारा, ठीक है, जो भी आपका इनकम होता है वो ये 5 हेड्स में आता है. ओके, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड आईओएस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, ये 5 में ही आएगा, इसके अलावा और कोई हेड ऑफ इनकम आपका नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है, ये जो भी इनकम आपका आ रहा है, ये हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. ये 5 हेड ये मेन है. ठीक है, टैक्सेशन का ये असली पूरा बॉडी है टैक्सेशन का. तो यहाँ तक मैं बोलता हूँ जिसको 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं उसको तो मतलब 55 से कम तो मिल ही नहीं सकता डायरेक्ट टैक्सेशन, भले ही उसको बाकी कुछ नहीं आता होगा. 5 हेड ऑफ इनकम जिसको आते हैं, एक तो वो कभी फेल नहीं हो सकता कोई भी टैक्स के एग्जाम, किसी भी लेवल के. ठीक है, और इंटरमीडिएट की मैं बात करूं तो जिसको ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं वो आराम से एटलीस्ट 55 तो स्कोर करेगा ही, ये मानते हुए कि उसको बाकी नहीं आता, बाकी चीजें और आती है आपको तो और स्कोर बढ़ेगा आपका. So what I said here is basically you've got 5 heads of income. Okay, this is the main body of the income tax. All incomes come in these 5 heads. Other things are just supporting these 5 heads. So anyone who knows these 5 heads in and out, there is no question of that student failing, first thing, even if he doesn't know any other thing. Okay, so minimum he'll get is 55, minimum. Okay, if he knows these heads of income. More and more things, as you know, of course, your score will increase. So how we do in taxation, the format is, first, these incomes are seen, okay? And then you total all these. These are your income, and there is, then you do set off and carry forward of losses. Okay, there's something called set off and carry forward losses. This will learn after your heads of income. Okay, so if there is loss in any one head, how it is to be adjusted, or if you have any previous year's loss, how and to what extent you can adjust it, that is seen in set off. Another one is clubbing. Clubbing is nothing but if you have a minor child or some dependent, their income is clubbed with you. That's all it is. Okay, so this is seen. Okay, so after these two, what you get, that we call as your net income. Sorry, we call it as GTI, or gross total income. From your gross total income, okay, you've got some deductions, okay, which is under 80C to 80U deductions, they are called as. Okay, that's also a separate chapter. So less deductions, I would just say. Okay, deductions, okay, then what you get is your net income. This is just the overall framework I'm showing. Okay, and this net income, what you get, you apply your tax rate to this. All tax rate tables and all whatever you have learned, no, you have to apply that to this net income basically. So this is your framework of taxation. ठीक है, ये आपका taxation का framework है. तो हम हालांकि फर्स्ट हेड आपका सैलरीज है, हम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये सारे हेड्स इंडिपेंडेंट है. हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा है और टोन सेट करने में जरा मदद करता है, इसलिए जो टैक्स के मैक्सिमम फीचर्स है हाउस प्रॉपर्टी से चालू करते हैं. ठीक है, तो अब हम, तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग इनटू द रियल टॉपिक, राइट? सो आई हैव डन अ बिट ऑफ फॉर्मेटिंग एंड ऑल. सो
It would look good and you will understand easily also while studying. Okay, first thing is the charging section. What is charged under income from house property? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं चार्जिंग सेक्शन में? So income from house property 22 to 27 के बीच में आता है, ठीक है सेक्शन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग सेक्शन, यानी इस हेड में टैक्स करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए वो हम देख रहे हैं। What conditions should be fulfilled for an income to be taxed under this head, that we are seeing in section 22. So what does it say? Annual value of a property. What is annual value? Or we'll see. Okay, there's a particular way of computing annual value. Let's say the rental value. You can just use the word rental value. Annual value of a property consisting of any buildings or land appurtenant thereto. There should be a building and there should be land appurtenant thereto, means some, as we saw the other day, right? Some courtyard or some land in front of our house we have, right? हिंदी में हम लोग आंगन बोलते हैं, जैसे वो सब land appurtenant thereto में आ जाता है। पार्किंग वार्किंग ये सब भी land appurtenant thereto आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो land appurtenant होना ही चाहिए ऐसा नहीं, देखिए और लिखा है यहाँ तो फ्लैट वैट में तो सिर्फ फ्लैट है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू ऐसे प्रॉपर्टी का जिसके में बिल्डिंग है और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, ठीक है, ओके। एंड एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट, ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, शुड बी द ओनर, ठीक है, वो ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का, तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, ठीक है। और जो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बस यही बात, ठीक। खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो पीजीबीपी में टैक्स चले जाता है इसका, तो ये एक कंडीशन है। तो हम किस चीज को कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम टैक्स कर रहे हैं, वो ये है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर दैट वी आर टैक्सिंग। एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी consisting of any building or land appurtenant thereto, okay, we are taxing this. And what are the key conditions? SSE should be the owner, he should not use it for his own business or profession, okay, then it will be chargeable under this rate, right? So this is your introduction and the charging section आपका house property का, ठीक है। So here just remember that it's the earning capacity which is taxable and not actual income. In most cases it comes out to be actual income, but actually what is taxed is the earning capacity. When we learn the computation you will understand that, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी को टैक्स करते हैं कि कितना आपका इनकम आया, उसको नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम्स में जाएंगे ये पॉइंट समझ में आ जाएगा आपका। अब सेक्शन 22 को ही हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन में देखा उसी को टैबुलेट किया गया है, ओके। तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सब्जेक्ट टू व्हाट, हमने ऊपर ही देख लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ठीक है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट दैट, ठीक है, और एसएससी ओनर होना चाहिए, ठीक है, या डीम्ड ओनर भी हो सकता है। जैसे आप देखिए ना टैक्सेशन में डीमिंग वाली बात आपको समझ में आ जाएगी कि डीमिंग मतलब जो उस डेफिनेशन में नहीं आ रहा है लेकिन लॉ ने बोल दिया है कि इसको ऐड कर दो उस डेफिनेशन। डीमिंग मींस even if in general he is not coming under the definition, but the law is saying add him in that definition. That is called deemed provisions. Like we have seen some deemed provisions, you will see several other deemed provisions, okay. So and then one condition is there should be house property, he should be the owner, he should not use for his own business or profession, okay, taxable business or profession, okay? The profits of which are chargeable to tax. So these three conditions are important for house property, ठीक है, समझ गया। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो हमने डेफिनेशन में जो समझाया मैंने वही है, टैबुलेशन में बताया गया है। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, एसएससी उसका खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, और वो बिजनेस और प्रोफेशन ऐसा जो टैक्सेबल हो, ठीक है। अगर वो कोई फ्री वाला बिजनेस कर रहा है तो वो इसी में रह जाएगा उस प्रॉपर्टी,
टैक्सेबल बिजनेस प्रोफेशन है तो वो पार्ट पीजीबीपी में चले जाएगा, ठीक है। तो अभी अगेन हम थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ये क्या है वो क्या है, फिर बाद में हम कंप्यूटेशन में आएंगे लेटर ऑन, ओके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, ये क्या है करके, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। लैंड तो ये सब चीजें इसमें आती है, जैसे कई कोर्ट केसेस वगैरह हुए हैं, धीरे धीरे टॉपिक डेवलप हुआ है, ये आता है क्या, ये नहीं आता है क्या। So there were several court cases and all, and gradually it was developed that okay, this will come, this will not come, and all that. Okay, so that we are seeing now. So any land surrounded by a wall having roof or not. See, important here is or not. Okay. So especially for commercial buildings, your roof is not required. Okay, like you have a stadium. Stadium is a commercial building, correct? There is no roof, right? So it will come under the definition of building or land appurtenant thereto. Okay, swimming pool, big swimming pools and all that. There is in most of the swimming pools there is no roof, right? So ये सब ये है. So land surrounded by wall, having roof or not. Okay. और जैसे इवन जो ये है any land appurtenant to a building, ये second वाला is the key definition. Any land appurtenant to a building, ठीक है। तो क्या क्या चीजें केस कोर्ट केसेस में वगैरह प्रूव हुए वो सब यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल वो है कि कोई भी लैंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्डिंग रहेगा, और कमर्शियल बिल्डिंग्स के केस में ये रहेगा अगर सराउंडेड बाय वॉल है, रूफ नहीं भी हो तो उसको लैंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्डिंग मान लेंगे, ठीक है। बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू मान लेंगे इसको, ठीक। तो चलिए, तो अभी हम ये थोड़े जैसे मैंने बोला आपको थोड़े डिसीजंस वगैरह देखेंगे, क्या क्या डिसीजंस आए नहीं आए, ओके। सो बिल्डिंग इंक्लूड्स ब्रिक्स, ठीक है। ईंट का बिल्डिंग हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का भी हो तो बिल्डिंग। सो ब्रिक बिल्डिंग, स्टोन बिल्डिंग और इवन मड बिल्डिंग, एवरीथिंग इज अ बिल्डिंग, ओके। And it also includes residential as well as commercial houses. If you are giving a commercial property on rent, that will also come under this purview. Okay, it will be taxed. The rent which you are taking, that will be taxable as income from house property. Right? ठीक है। तो फिर देन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए वेकेंट लैंड जो होता है, प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, प्लॉट लेके हमने डाला है बोलते हैं ना, इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। वेकेंट लैंड जो है, क्योंकि वो बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू के डेफिनेशन में नहीं आता। तो लैंड अपॉर्चुनिटी बिल्डिंग से लगा होना चाहिए, ऐसी कोई सेपरेट प्लॉट नहीं, ठीक है। आपने प्लॉट डाल दिया, आपने इवन आपने बाउंड्री वॉल भी लगा दिया तो वो प्लॉट ही है, ओके। तो vacant land is not house property, right? And that because it's not house property, if you're getting any income out of that vacant land, correct? So that will come under business income or income from other sources, right? So house property has no relation to that. Now next point is what I told you before. Roof is not necessary for non-residential building. See, for residential purpose, without roof, we cannot stay, right? So but for non-residential building, you don't need to have roof. Okay, stadium or swimming pool, whatever, golf course, right? The examples are these here, but stadium, open air swimming pool, okay? All these have been decided by various courts to be building and land appurtenant there. Okay. And then next thing what we will be seeing is it has to be permanent structure meant for any useful purpose, not a temporary structure. It should be a permanent structure. Mud structure is also okay. It should be permanent structure, okay, for permanent use basically. Okay. And then
flats and all we know, right? And this we don't even have to talk about. फ्लैट, हर फ्लैट आपका अलग हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है, बस वही पॉइंट है और कुछ नहीं. Okay, incomplete, ruined or demolished house is not house property. Okay, that house should be capable of being used as a house property. Okay, so incomplete, ruined or demolished house जो house property नहीं होते. ये सब किस में आया होगा? सब ऐसा कोई केस कहीं ruined house होगा, असेसिंग ऑफिसर ने जाके टैक्स कर दिया होगा किसी को, ठीक है, उसने केस डाला होगा, तो उससे डिसीजन आया. ऐसा ऐसे डिसीजंस डेवलप होते हैं. ठीक है, लास्ट जो है आपको क्या देखना है, ठीक है, ये लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग को थोड़ा एक्सप्लेन किया है. वही कार पार्किंग, अप्रोच रोड्स यानी सामने आने वाले जो रोड्स हैं, बैकयार्ड, कोर्टयार्ड, सब आंगन वांगन जो है ना, अटैच्ड टू दैट बिल्डिंग. सो लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग मींस all these things come under it. Okay, car parking, approach roads, backyards, all those things. Okay, so this is basically the general explanation we have had of your land appertinent thereto, or buildings and land appertinent thereto. Okay, the second condition, first was there should be a building or land appertinent thereto. Second is SSC should be the owner of the property. So let's talk about the point 2 now. ठीक है, आपको कोई क्वेश्चंस अभी तक? कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप लोगों को सेकंड पॉइंट में जाने से पहले? चलिए, तो second point is owner. He should be the owner. Okay, taxable only in the hands of the owner, even if he doesn't receive the income. ठीक है, ओनर के हाथ में टैक्स होता है, भले ही वो पैसा कोई और कलेक्ट करता होगा, लेकिन ओनर के हाथ में टैक्स होता है ये. ठीक है, तो ओनर होना इंपॉर्टेंट है. पर्सन अदर देन द ओनर, ठीक है, उसको अगर वो रेंट कोई और कलेक्ट भी कर रहा है तो उसको टैक्स नहीं करेंगे, जो ओनर है उसी को करेंगे टैक्स. ठीक है, लॉ जो है वो ओनर जो है उसी को टैक्स करेगा. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ओनर को ही टैक्स करेगा, इसलिए सब लेटिंग करके एक चीज होती है. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने सुने होंगे, होता है. ठीक है, मैं क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, ये जो रेलवेज में जो है, जैसे मेरे पिताजी रेलवेज में थे, माय डैड वाज इन रेलवेज. सो इन रेलवेज यू गेट क्वार्टर्स. ओके, एम्प्लॉयज गेट रेलवे क्वार्टर्स. सो इट्स लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज इन 10th class or so, that point of time, because I remember this had happened. There was a case where an employee had been allotted a quarter, but he sublet it to someone else for certain money. Okay, and then he was charge sheeted. So that charge sheet used to be discussed a lot in my house at that point of time about that employee. Okay, so this is how I first came to know about subletting. So ये होता है कि ना, जो और कहीं कहाँ होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि फॉरेन में वगैरह जब ओनर्स रहते हैं ना, तो ऐसे लोग करते हैं कि रेंट में ले लेते हैं उनसे. ठीक है, जैसे रेंट में आपने 10,000 में ले लिए, अब उसको और किसी को दे दिए. ठीक है, सबलेट है ना, और किसी को आप दे रहे हैं, आप ओनर नहीं है ना, तो आप सबलेट कर दिए उसको किसी और को 15 में. अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो यहाँ आता नहीं, उसको आप 10,000 महीने में उसके अकाउंट में डाल रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी यहाँ इनकम होते जा रहे हैं. तो ऐसा होता है ना, इट्स रियलिटी, दिस थिंग्स हैपन, वी डोंट सी इट एवरी नाउ एंड देन, बट दिस थिंग्स हैपन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सबलेटिंग इनकम, दिस पर्सन's इनकम 5,000 he earned, right? 5,000 is what he has earned. So because he is not the owner, this person is not the owner, correct? So which is why this income will not be income from house property, it will be income from other sources. Okay, that is the point they talked about. ठीक है, समझ गया पॉइंट? सिंपल पॉइंट था, कुछ नहीं. जैसे मैं एक किराएदार हूं, मैंने एक दूसरे को किराए में दे दिया, हुआ सबलेटिंग, और कुछ नहीं. ओके, तो जैसे अब चलिए, ये एक एग्जांपल है, चलो ले लेते हैं. ठीक है, पिछले बार भी हमने बात किए थे, बट विल सी अगेन.
तो मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मिटाने के लिए थोड़ा सा कर दिया। टी टेनेंट है, ठीक है, टी इज टेनेंट, मंथली रेंट आपका है कितना, 10,000 रुपीज, वो दे रहा है टी, ठीक है। ओनर कौन है, ओ ओनर है, ओके। तो अब क्या हुआ कि आपके टी ने सबलेट कर दिया प्रॉपर्टी एक थर्ड पर्सन को, और उससे वो रेंट ले रहा है 12,000, ठीक है। सो हियर व्हाट हैज हैपेंड, टी इज टेनेंट, ओ इज ओनर, rent is 10,000, so T has sublet it to some other person for 12,000. So how much is T earning? He is earning 2,000 now, correct? Because he will collect 12,000, out of that 10,000 he will pay to the owner O. 2,000 is his income. So this is called income from subletting, this 2,000. That is income from taxable as IOS. Clear? Okay, simple है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। कुछ पूछना है किसी को इस यहाँ तक? Anybody wants to ask anything, they can ask. Clear? Like it's going simple. We have not yet entered computation and all. This is a very interesting chapter, a good chapter. From here onwards, 5 heads of income will be very interesting. You will all like it. There will be lots of provisions, yes, but it will be very interesting. Okay. So now let's move ahead. So next point is the owner includes legal owner, beneficial owner, and deemed owner. Here we have described what is a legal owner. We all know. Okay. When the house is in our name, we are legal owner. As simple as that. Okay. Legal title we should have either from Transfer of Property Act or Registration Act. Most of our legal ownership comes from the Registration Act. Okay. So then next is beneficial owner. Some beneficial owner concept I'll explain you. ठीक है. तो लीगल ओनर आप समझ गए, जब अपने नाम पे प्रॉपर्टी तो अपन लीगल ओनर, सीधी बात, कुछ भी उसमें सोचने की बात नहीं। बेनिफिशियल ओनर में क्या होता है ना, वो भी लीगल ओनर जैसे ही है, लेकिन जैसे मैंने जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक सोसाइटी है मान लीजिए, ठीक है, आपकी ये एक सोसाइटी है, इसके 100 मेंबर्स, ठीक है। तो इसने सबसे जो है 20-20 लाख कलेक्ट किया ये सोसाइटी ने, ओके। सो it has 100 members, correct, and it has collected 20 lakhs from each member, okay. So total has become 2,000 lakhs, okay. This is the total amount they have collected. With this they have bought a large place and they have built and developed a property, okay. And so they have developed, so they built 100 houses and gave it to these people back. तो क्या किए कि इन लोगों ने, सोसाइटी ऐसी करता है ना कॉमन पर्पस के लिए, तो 100 मेंबर्स से ले लिए पैसे, और ये सारे पैसे लेके उन्होंने एक जगह लिए और फ्लैट्स बनाए, ठीक है। फ्लैट्स बना के इनको दे दिया, सोसाइटी गेव इट बैक, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है ना, कई बार जो रजिस्टर्ड ओनर जो होता है, रजिस्टर्ड वो होता है सोसाइटी, वो रजिस्टर्ड होता है, और जो मेंबर्स जो होता है उनको वो बेनिफिशियल ओनर होते हैं ऐसे केसेस में। तो हालांकि वो बेनिफिशियल ओनर है उसका नाम, लेकिन उसके पास सारे राइट्स रहते हैं लीगल ओनर, ओके। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप बोलते हैं, वी कॉल इट बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। ये हो गया आपका बेनिफिशियल ओनरशिप का पॉइंट। फिर है बात करेंगे, देखिए फिक्शनल और डीम्ड ओनर, ठीक है। इसके जो है ना डीम्ड ओनर के 5 पॉइंट्स है कि किस किस को हम डीम्ड ओनर मानेंगे करके, ओके। तो अगर आप सेक्शन 27 में कवर हो गए डीम्ड ओनर के, डीम्ड ओनर के कवर हो गए और डीम्ड ओनर करार दिया गया आदमी, वो व्यक्ति, तो वो डीम्ड ओनर ही टैक्स होगा, भले ही उसका बेनिफिशियल या लीगल ओनर कोई और हो, लेकिन अगर डीम्ड ओनर डिसाइड हो गया तो
precedence will be to the deemed donor. तो deemed donor को ही टैक्स किया जाएगा. Okay, remember that. So deemed donor के 5 cases होते हैं. There are 5 cases for a deemed donor, what we call as a deemed donor, right? What I said here is like deemed owner or fictional owner, always remember both names. Okay, whenever you've got 2 names in objective types, they will ask you the other name. So you'll always know it as deemed owner, they will ask fictional owner. So always when there are 2 names, always pay attention to both the names. Right? So here now, okay, so basically, if a person has become the deemed owner, then he will be taxed, even if there is a registered or beneficial owner. Okay, so deemed owner will always take precedence in taxation. There are 5 cases of deemed owner. ठीक है, यहाँ पे 5 केस है आपके deemed owner के, हम देखेंगे क्या क्या है. One is transfer to spouse or minor child. ठीक है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है कोई किसी ने अपने स्पाउस यानी क्या है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है. ठीक है, उसको स्पाउस बोलते हैं. राइट? सो if a person is transferring his house property to spouse or minor child, he'll basically do this to hide his income. Correct? Normally he'll transfer it, okay, to hide his income, especially when the transfer is without adequate consideration, that is for less consideration. घर है 50 लाख का, हमने 50,000 में ट्रांसफर कर दी वाइफ के नाम पे. ठीक है, ताकि जो वो इनकम है वो सब मेरे नाम पे टैक्स ना हो करके. ओके, राइट? सो हियर आपको ये देखना है कि ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड. ओके, इफ दिस इज डन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, then the transferor becomes deemed donor. Okay, the person who was transferred, he becomes the deemed donor in case. Now what are the things in bracket? Okay, तो देखते हैं कि ब्रैकेट में आपको 2 चीजें दी गई है, वो क्या है वो देखेंगे. ये बोल रहा है कि ये पॉइंट क्या बेसिकली वो अपने वाइफ को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स छुपाने के लिए. करेक्ट? अगर वो कोई थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है तो हम उसको डीम्ड डोनर नहीं बनाएंगे ना. डीम्ड डोनर तभी हम बना रहे हैं जब वो अपने किसी स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया ताकि उसका इनकम हट सके. तो ये लागू नहीं होता है कब, जब आप डिवोर्स एग्रीमेंट में वो देता है, क्योंकि देन वाइफ इज नो मोर वाइफ, राइट? थर्ड पर्सन को दे रहा है वो, और वो हाउस प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो उसका बेनिफिट नहीं है उसमें. तो ये डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट ड्यू टू एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. दूसरा है माइनर चाइल्ड, जो है माइनर मैरिड डॉटर नहीं होना चाहिए. मैरिज के बाद जो है देन क्या होता है कि वो वाइफ का सब प्रॉपर्टी हस्बैंड के साथ एसोसिएट हो जाता है. ठीक है, तो अगर उसने दहेज में ऐसा कुछ मान लीजिए कि फॉर समथिंग लाइक दैट और सम गिफ्ट और व्हाटएवर, उसने माइनर चाइल्ड को अगर घर दे दिया, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड. बेसिकली ही विल नॉट हैव एनी से इन दैट इनकम. ठीक है, इसीलिए ये 2 केसेस में ब्रैकेट में जो है, देन ब्रैकेट में जो रेड लाइन जो ड्रॉ किया है मैंने, सो इन दैट केस ही विल नॉट बी डीम्ड डोनर. दैट इज द लॉजिक, राइट? तो समझ गए आप लोग? आई होप इन इंग्लिश आल्सो इट इज क्लियर. सो ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, दैट्स ऑल योर प्रोसेस. But just 2 exceptions, it should not be divorce agreement, not to a minor married daughter. That's it. Okay, so let's just take a small example here. Mr. X transfers house property worth 5 lakhs. Okay, worth 5 lakhs he has transferred to Mrs. X. Okay, out of love and affection, that is basically because he is his wife, he has transferred it. Okay, so here in this case what they mean is that he has just transferred it without any money. Okay, without any money means it also comes as inadequate or no consideration. Okay, no consideration is also inadequate consideration. Correct?
So anything less than 5 lakh, if it's being paid, it's inadequate consideration. So here Mrs. X is the legal owner, right? After transfer, she will become the legal owner, right? But Mr. X will be liable to tax as deemed owner, right? This is for this point. ठीक है, समझ गए आप? इसमें कुछ सोचने की बात नहीं थी। फिर आगे जो है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि हमने एक्सेप्शन हमने दिए ना कि डिवोर्स सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, वो रिलेशन अगर, इसलिए मैरिज दोनों दिनों में सबसिस्टेंट रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए मैरिज। मैरिज शुड बी देयर। एनी क्वेश्चन पवन? जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हम हेड पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, हाँ जी इसमें शुरू का मुझे कुछ मतलब क्लियर नहीं हुआ। उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना कि वो स्टैंडर्ड रेंट और वो करके। वो आगे आएगा। अच्छा, वो वो एक चीज। कंप्यूटेशन पार्ट है, ये अभी हम उसका बैकग्राउंड कर रहे हैं। इसके बाद में जब हम आगे जाएंगे, सो मे बी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में वो चालू होगा कंप्यूटेशन। अब हम वो सब देखेंगे, जो आपका फेयर रेंट, ओके, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वो सब जो भी 4 पॉइंट्स होते हैं ना, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, वो सब देखेंगे कंप्यूटेशन। तो अभी सर नेक्स्ट क्लास कल होगी क्या? कल, आज मंडे है ना? हाँ कल होगी ना। कल होगी। कल होगी, मंडे ट्यूसडे और संडे को होता है। संडे को दोपहर को होता है 2 से 4, और मंडे ट्यूसडे यही टाइम रहेगा, रात का 8 से 10। ठीक है? अच्छा अच्छा, अभी ये 5 मिनट बाद सर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी क्या क्लास? हाँ टाइम तो ये हो चुका। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लेकिन मैं तो 1 मिनट पहले बंद कर देता हूँ आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो जितना जो टाइम जैसे स्केड्यूल्ड है वैसे ही बंद हो जाएगा। तो चलिए, तो आगे चलेंगे। राइट, सो यार जो है ना, सी मैरिज शुड सबसिस्ट ऑन बोथ डेज। ओके, द डे ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज day when income arises. Okay, for both days it should subsist. So whenever the marriage ends, then he will no longer be a deemed donor. That is the point basically. Okay, है ना? तो ये हो जाएगा, जब मैरिज अगर खत्म हो गया, उसने कर दिया गिफ्ट, ठीक है, डीम डोनर था, लेकिन जब मैरिज खत्म हो गया उस दिन तो डीम डोनर नहीं रहा ना। तो वो बात होगी, जब भी मैरिज खत्म होगा वो डीम डोनर से हट जाएगा। चलिए, ये एक बात हो गया। तो ये चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। So transferred property must be a house property. Very important point, that see, if he transfers cash to his wife and then wife buys a house property, then it is not taxable under this head. So for this head, it should be transfer of house. Okay, so if cash is transferred and then she buys house property, then this section will not be attracted. Okay, that's another thing, that we will have clubbing provisions that we'll see later on. So income of like things like these which he has purchased for his spouse or children, okay, all those income will eventually be clubbed under him. Okay, but the thing is that this will not be covered under house property. Okay, तो ये बात होगी कि यानी हाउस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए, तभी एक्सेप्शन 1 में आएगा। नहीं आएगा, नहीं, अगर कैश ट्रांसफर किया और उसने ले ली तो इस सेक्शन में नहीं आएगा। वो डील होता है लेकिन दूसरे सेक्शन में डील होके आएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम है, एक और चीज मैं कवर कर लेता हूं अभी। होल्डर ऑफ, एक दो हो जाएंगे, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। ठीक है, इम्पार्टेबल एस्टेट मतलब जो महल वगैरह जो होता है ना, बहुत सारी यूनिट्स रहते हैं, तो वो बेसिकली उनको जो है इसमें मिलता है, विरासत में मिलता है। तो उसको, सो these things, impartible estate is like, palace and all, so which are succeeded by grant or covenant, that is they get it from someone on succession. Okay, so that is called impartible estate. It has got many units.
and but legally it is not divisible. There are some chals and all which people get. चाल होते ना, चाल मुंबई वगैरह में, वो भी कुछ कुछ जो है, जो ऐसे कंडीशंस में मिलते हैं कि वो इम्पार्टेबल होते हैं, वो अलग से बेच नहीं सकता उसको, तो वो सब चीज को इम्पार्टेबल एस्टेट बोलते हैं। तो जो होल्डर है उसका वो डीम्ड ओनर रहेगा। इम्पार्टेबल एस्टेट में अलग अलग लोग रह सकते हैं, लेकिन उसका जो होल्डर रहेगा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी ना, उसका होल्डर को टैक्स किया जाएगा डीम्ड ओनर करके। अच्छा, आखिरी उसके बाद है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन। ओके, सो तो ये अगेन वही है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि एक सोसाइटी है, उसने 20-20 लाख सबसे लिया है और फिर घर बनाया है, राइट। तो इस टाइप केस में जो है वही पॉइंट ही है, बोल रहा है कि अगर वो सोसाइटी हो या कंपनी हो, रियल एस्टेट की कंपनियां होती है, ओके, कंपनीज फॉर रियल एस्टेट, or any such association which is building a house like that, collecting money and building a house, okay, and giving it to its members. So then that will be the deemed owner. So basically the member will be the deemed owner, okay. The company, society or association will be registered owner, member will be deemed owner, okay. तो ये सेम केस है जो मैंने आपको समझाया था, जो व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू देयर, द सेम केस। चलिए, विल फिनिश इट हियर, एंड ऑफ द सेशन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? I will continue with this. Tomorrow first session will complete residential status, okay, and next session onwards will continue with house property. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। इसके नोट्स में भेजूंगा, ठीक है, ओके, बाय।